शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो, ना डरो अरस्यों जब जाए डरो। नीचे कर अपनी जीद करो, और सिख हो अपने ही मन का। ए लालच हो गुण तो उचरा, जब आव के औगन दान बने। अत हिरण में तब जूझ मरो, जिसमें अमृत ज्ञान है। मानक भगत बैराग, गुरु ग्रंथ साहिब उदग। बंदों कर अनुराग, एक ओंकारा सतगुरु। ते प्रसाद सच हुए, वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूपपुर खालसा सत संगत जी, हर चीज के तीन पक्ष हैं। पहला कारण, दूजी घटना, ते सारियों तो बाद सट्टा। आखिरकार जब आप समागम कर रहे हैं, इसका कारण की है? क्यों अखंड किया? ठंड है, घर छड़ के आप इत्थे आए हैं। ਇਹਦਾ जवाब गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह देते ने, कहते ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਅਪਰਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਮਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। गां पुत्रां दियां तीन किस्मां सियाणियां ने दसियां ने। जिहो जिहा बाप दे कोल बंगला मिलिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਟਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪੁੱਤਰ। लेकिन बाप नूं जानदा कोई नहीं, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ पैदा होया कि ਉਹਨੂੰ दुनिया जानन लग पई ते ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪੁੱਤਰ। एक पौड़ी असीं गुरु घरां विच दो टाइम ते पढ़दे हां। आसा दी वार दा कीर्तन सवेरे हुंदा है, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ पाठ ਅਸੀਂ शाम नूं करदे हां। लेकिन वो पौड़ी दो टाइम से पढ़ी जाती है। लाख दुष्टा पारिया प्रहलाद तराया। बाप नूं दुष्ट, बेटे नूं संत ते भगत किया गया क्योंकि उहदे काम चंगे सन। मेरे कहने तो मुराद बाबा लखमा के मंजी साहब कई बार जिक्र किया है, यह आरामी भाषा का शब्द है। ते बाबे का अपना बुजुर्ग साडे मन में शंका आता है कि बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह की उम्र 7 ते 9 साल है, लेकिन आपां कदे भुजंगी उन्होंने नहीं आख्या। आपां कहने बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, उम्र भावें छोटी पर काम उन्होंने बुजुर्गों वाले कीते जो बाबे बन गए। असीं उन्होंने बाबियां नूं चेते कर रहे हैं। साडे समाज विच कदे खानदान की गल चलती सी, अज वो गल्लां भुल गईयां। बाबे नानक दा खानदान
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੇਕੀ ਵੰਡੀ ਜਾਏ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਕੀ। ਅਸੀਂ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੂ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਰਿਆ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁਝਾਈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੁਝਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਏਵਨਾ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗੇੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗੇੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਂਕੜ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਮੀਰ, ਤੋਈ ਤੇ ਮੰਗੇ ਸੋ ਅਹਿਮਦ ਫਕੀਰ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਮੰਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਬਾਬਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਮਾਯੂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਮਾਯੂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਭੁੱਲ ਮੰਗੀ ਤੇ ਵੈਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਭਰਾ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਭੁੱਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਖ ਚੁਣੀਏ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਦਾਰੁਲ ਹਰਬ ਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾ ਇਹ ਮੰਦਰ
ना ये जनेऊ ना ये तिलक, केवल ते केवल अजान की गल चले। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह ने आख्या सी बादशाह कीता दोहां दा एक तू लोड़ना है, करने दोहां दे तीन भगवान शाह। गुरु तेग बहादुर पातशाह रंगदेव नूं कहण लगे तू तां कहना भी मैं दोहां दा एक करना है, पर तेरे बस की बात नहीं। राज भाग ते मोहनियां बेगमां दा किसे रोज ना रुक निशान शाह, पासे मौत अशेर दी जान सानू जीवन रात दे सुगन समान साह। कीता दोहां दा एक तू लोड़ना है, करने दोहां दे तीन भगवान शाह। और गुरमुखो चिट्टे दिन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज नूं शहीद किया गया। और आप पढ़ते ठीक कठोर दलील सिर प्रभुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किन आन। ये क्यों किया गया? दुनिया के इतिहास में हमेशा कातल मकतूल को चल के जाता है। ये पहली घटना है कि मकतूल कातल को आप चल के गया। और नाल तीन सिख भाई मतीदास आर्य नाल चीरे गए। पॉइंट नोट करिया करो। कह लगे मतीदासा को तेरी अंतिम खाश, कहता मेरा मुंह गुरु तेग बहादुर पातशाह के पिंजरे वाल होना चाहिए। कारण कहता शक्तियां गुरु को मिलनी है। मैं साहिबजादियां दे पावन दिहाड़े ते अपनी सिख भाईचारे नूं बेनती करा, गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह वाले पासे मुंह करिया करो, तुहानू एनर्जी मिलेगी। जे गुरु वाले पासे तो मुंह पासे कर लिया तो गल नहीं जी बननी। मतीदास नूं आरे नाल चीरिया गया। पंच प्रमाण पंच प्रधान की पौड़ी ते आया पाठ, शरीर तो फाड़ हो गया पर पाठ हो गया नहीं। अज वो लोग एक गल नूं किवें जानन जिन्हें कदे जी करके जप का पाठ ही नहीं किया। आप जपदी बाणी कहने ना, बाणी का नाम है जप निशान। जप गुरु का हुक्म है ते गुरु के सिखा किते जी करके जप कर, जिन्हों कहते फ्राम दी कोर ऑफ हट। भाई दयालदास नूं देग पवाड़िया गया। कहन लगे तेरी वांग, कहन लगा देग नूं क्यों ढकिया जे ना। कारण कहता धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज की मेरे ते निगाह पएगी। जलाल ने पूछा फिर की होएगा? कहता होगा ये कृपा कटाक अवलोकन कीनो, दास का दुख बधारियो। जो गुरु तेग बहादुर पातशाह कृपा परी निगल मैनू तकेगा, तुहाडी कुंबल की देग का मैनू सेक नहीं लगना। इतिहास के पन्ने कहते ने हड्डियां अड हो गई, मांस अड हो गया। सुखमनी साहब का पाठ कर दो मेरे भराओ, मेरियो भैनों। सुखमनी साहब दियां 24 अष्टपदियां, 24 श्लोक, हर अष्टपदी में 8-8 पौड़ियां ते पौड़ी 10-10 पंक्तियां। लेकिन राहो एक है, वो किथे? सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम। जे सुख चाहना ना ते वैगुरू दे नाम विच है। अज दुख नाल कहना पैंदा, मुक्तसर की धरती ते कह रहे हैं अज सुख बाबे दी निक्कियां लाचियां जो लभदे हो, ये नहीं जे मिलना। अज सुख बाबे दी फूकां जो लभदे नहीं जे मिलना। अज सुख पानी दी बोतलां जो लभदे जे नहीं मिलना। ये मिलेगा केवल ते केवल प्रभु की शरण, सगल भय लाथे दुख बिन से सुख पाया। केवल ते केवल वैगुरू की शरण लईए। आप पढ़ते दामन नहीं करते, बलोक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक एक भगवान। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह ने भगवान किया है। असीं खुशकिस्मत हां, दुनिया के धर्मां का मुतालिया करो। इस्लाम विच मुहम्मद साहब खुदा दे पैगंबर हैं,
एक खुदा है, तीसरा शैतान है। ईसाइयत में पढ़ते हैं ईसा जी खुदा दे बेटे, खुदा नाल शैतान का भी जिक्र किया है, लेकिन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहो जे नाले गुरु नाले परमेश्वर। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे ते नाल गुरु रामदास पातशाह कहते हैं कि मैसेज लैके आए हरमंदर साहब चो गुरबाणी कहे सेवक जन माने परता गुरु दस्तारे। बंदे दे कहण ते नहीं, जो गुरु की बाणी कहती मनेगा संसार प्रपंच तो उतर जाएगा। वह बाणी निरंकार है, निरंकार का अर्थ है परमेश्वर, जिहड़ा पकड़िया नहीं जा सकता। राग रूप न रंग किश लो गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। एक परमेश्वर स्वरूप, एक गुरु स्वरूप आप जिन्ने बैठे हैं, ना कथा करने वाले रहना है, ना कथा सुनने वाले ने रहना है। फरीदा शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे कहते बैठ गया, ना तुसी रहना ना मैं रहना, पर यह होगा, ये सी, ये है, ये होगा। क्यों? आप रोजाना पढ़ते आद सच, जुगाद सच, है कि सच, नानक होसी भी सच। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह सच का अवतार है। ये परमेश्वर स्वरूप है जिन्हों तुसी पढ़े लिखे ट्रुथ इज यूनिवर्सल। सच्चाई सरीरी है, सच्चाई ईसाइयां नूं चाहिदी है, सच्चाई मुसलमानां नूं चाहिदी है, सच्चाई यहूदियां नूं चाहिदा है। हर एक ही सच्चाई नूं लोड़दा है, और ये सच्चाई धन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह देते हैं। गुरमुखो जिहड़ी ये सत की आवाज़ है ना, इन्हें औरंगजेब नूं एलर्जी की। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज और नाल गुरु के 3 सिख शहीद किए गए। शायद एक गुरु नानक की गद्दी भै भीत हो जाए, पर वो आनंद जिथों सदीवी तौर पर आनंद मिलना सी। आप आनंद की गल करते हैं, रोजाना पाठ करते विचारिया करो, असी खाण पीण आनंद महसूस करते हैं, असी सौण में आनंद महसूस करते हैं। विषयानंद संसार है, भजनानंद हरदास, ब्रह्मानंद जीवन मुक्त, भई वासना नाश। ये आनंद किसी व्यक्ति को नहीं मिलना। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाणिया। आनंद दी गल्लां तां करदे आ, लेकिन इहदी समझ गुरु को पएगी। इस कारण करके गुरमुखो जिहड़ियां गुरु दी सिख संगतां सन, वो आनंदपुर साहब नूं आनंद की प्राप्ति वास्ते आईयां। 1699 की विसाखी नूं अमृत संचार होया। ये पहली घटना है। मेरे गुरुदेव ने पंजां दे सिर कट के उन्होंने जिंदिया किया, क्योंकि आप पढ़ते हैं सतगुर मेरा बाल जीवाले, सतगुर मेरा सतप्रभ परले, मृत्यु को पायो तन सासा, बेशर्त आन बुलाया। ये मैं विचों गल भुली तां बोली है। कई लोग शंका करते हैं, किंतु करते हैं ये किवें हो सकता है? गुरु का साहब ज्यादा गुरु पदवी ते नहीं। बाबा अटल राय उन्हें अपने साथी के गल च कुंडी पा के आख्या, मित्रा मीठी दे, जिंदा होया। ते गुरु अर्जन सच्चे पातशाह कहने लगे, पुत्र जड़ के रखी है। बाबा अटल ने जी सचखंड प्याना कर गए। बाबा गुरदित्ता जी ने मरी हुई गऊ नूं जिंदिया किया। जिस महापुर के पावन अस्थान से आप बैठे हैं, बाबा नामदेव ने मरी हुई गऊ नूं जिंदिया करके मोहम्मद तुगलक के मुंह च उंगलां पवा दित्तियां। आप पढ़ते हैं नाम की शक्ति अनंत है। आप पढ़ते अंत न जापे पारावार। ये सारी पौड़ी उस बेअंत की व्याख्या करती है। गुरमुखो कलगीधर पातशाह ने ऐलान किया, जिनकी जात वर्ण कुल माही
सरदारी ना भई कदाही, तिन्ही को सरदार बनाओ, तवे गोबिंद सिंह नाम कहो। जिन्हां दे जात वर्ण जाति विच कदे सरदारी नहीं ना आई, जदों उन्हां नूं सरदार कहणगे फिर कहना कि गुरु गोबिंद सिंह है। मैं सादी जी गल करां, एक मजदूर रक्षा चलाउंदा है, गुरु का बाणा उसके शरीर उपर है, दाड़ा दस्तार है। एक करोड़ापति बंदा गड्डी चों उतरदा है ते कहंदा सरदार जी फलाने महल्ले में जाना ते किन्ने पैसे लोगे। करोड़ापति गड्डी चों उतरिया, लेकिन गुरु का बाणा वेख के कहने लगा सरदार जी एक कलगीधर पातशाह दी रहमत पर आपां कदर नहीं की। गुरु सानू समझ बख्शे। और इस आनंदपुरी दी एक वेरा नी बेअंत वेरा घेरे पाया। इहो जिहा गुरु है, कला सिखां दा नहीं। ये साडा प्रचार गलत है। जिदन कलगीधर पातशाह का अवतार होया ना, उदों सारियां तो पहला बाबा भीखन शाह ने नमाज पढ़ के चढ़ते नूं सीधा कीता सी कि अज अल्लाह का नूर पटने में आया है। आपां तां बाद विच मत्था टेकिया ना, लेकिन भीखन शाह ने अद्धी रात नूं नमाज पढ़ी। चेलियां नूं कहण लगा जिहड़े अल्लाह दे नूर नूं आपां रहमत प्राप्त करना चाहते हो ना, वो अल्लाह का नूर मैनूं अज पटने की धरती दे सिरे से आया। रौ विचार गुरमुखो इस आनंदपुरी नूं घेरे पाए। आप गुरुद्वारे जो आने ना तो डिमांड लैके आने, मैनू आ चाहिए जे ना मिले तो मैं गुरुद्वारे नहीं जाना। कि इतिहास के पन्नियां नूं वाचा करो। भंगाणी का जंग होया 1688 विच, और उहदे विच पीर बुद्धू शाह दे जिहदा नाम वैसे बदरुद्दीन पर आम प्रचार बुद्धू शाह है। ਉਹਦੇ दो पुत कुर्बान होए, सगा भरा कुर्बान होया, साला कुर्बान होया, 500 मरीज कुर्बान होए। ते कलगीधर बापू कहने लगे बदरुद्दीना तू तो प्यार वाली हाथी मुका दी, जो मंगना ही मंग। आप तो मंगना सी मुहाली का प्लाट, उन्हें बिल्कुल नहीं मंगया। कहने लगा पातशाह जे तुठा है, इतिहास कहता कि कलगीधर पातशाह दो केसा रुका कर रहे थे, जो इतिहास भी लिखा है। मालका जे तुठा ना मेरे ते मेहर कर। एक केस कंगे दे समेत ने, जिहड़े कंगे में 2 केस ने। किसी साडे वर्गे घोड़े ने कह दिता की लएगा इहदे च, की मिलेगा। कहने लगा मैनू तो पता नहीं, पर भाई नंद लाल कहता है कलगीधर बापू मैं तेरे एक केस तो 2 लोग कुर्बान कर दिया। भाई नंद लाल की किसी लिखत पढ़ो। भाई नंद लाल कहता कलगीधर बापू जे मैनू पूछे भी तेरे केस किन्ने वकील ने, तेरे दो लोग तेरे एक केस के बराबर हैं। गुरमुखो पीर बुद्धू शाह गुरु नाथ मस्तक होया, जवानी है। पीर बुद्धू शाह का साला बीबी नसीरा का भरा, पीर बुद्धू शाह धर्मपत्नी का नाम सी बीबी नसीरा। वो सरकार नूं कहण लगा कि तुसीं मैनूं आग्या दो, मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं जिउंदे या मार के तुहाडे पेश करांगा। जवानी में बंदे की होश कम नहीं करती। मैं पढ़िया थां ते जवानी ये पागल, जवानी ये झल्ली, जवानी को कादी जो बैठे ने चली, हवावां चुडे ते अंबरां नूं छेड़े, सदा इनकलाबां च रहिंदी सुखली। जवानी ये पागल, जवानी ये झल्ली। जदों वो दिल्ली तो तुरिया ना ते साडे समाज कदे रवायत हुंदी सी, अज वो खत्म हो गई।
मैं अपने बचपन तो रवायत देखी, साढ़े वेहद्या वेहद्या बड़ा कुछ चेंज होया। असीं बजुर्गों के पैरी हथ लाउणा, बजुर्गों ने सानू सीख देनी। मैं पोथियां च नहीं पढ़िया, मैं अपने घरों एक गल लभी। असीं जदों भी कपड़ा पाउणा ना, गल च कमीज पजामा जो भी होवे, ते असीं अपनी दादी के पैरों नूं ला के पाउंदे सन। पहला असीं अपने बजुर्गों तो देखिया, फिर चाचा जी पिता जी ने जदों कपड़ा पाउणा तो मेरी दादी के पैरों नूं लाउणा, असीं भी मुड़ के उस तरह कर लग पाए। ते दादी ने सी देनी, ये मेरा पुत कपड़ा पाड़े ते नवां सवावे। मेरी शुरू तो प्रवृत्ति हो जी, मैं क्या भी मां चंगी सी ते नहीं है, पुत कपड़ा पाड़े ते सवावे सवावे। कहन लगी बच्चा तू अजे छोटा है। जो मैं सियाणा होया तो मैनूं कहन लगी पुत्र कदे मरिया का कपड़ा पाटा। ये बजुर्गों की सीख है कि मेरा पुत जीवन भोगेगा, कपड़ा पाड़ेगा ते नवां सवावेगा। जिहड़ा मर गया कदे मैं ठंडा हो गया। भाव बजुर्गों माइया ने आना, सगियां सोदरियां बीबियां ने उन्होंने पैरी हथ लाउणा, उन्हें सी देनी धीए तेरे भजड़े जिउण, तेरे सिर दा साईं जीवे, तेरे पेके खुशी वसन, तू दुधी खेले। पता नहीं ये कितनियां सीसां होंदियां सन। सिर दा साईं जीवे, पति भजड़े पेकियां दी सुख, दुधी खेले भाव तेरे का रोटी पानी सौखा होवे। इन्हां क्या जी विज्ञानी जी कथा भुल के मैं गुरमत की गल कह रहा है। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बाणी गुरु पंचम पातशाह कहते हैं, मेरी मां की सीस मैनू इत्थे लै आई। आसा राग पढ़ो, आसा भाला पंजवा। गुरु पंचम पातशाह कहते मेरी मां भानी जी कहती सी, पूता माता की असीस निमक न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश मेरे हीरिया तैनू रब ना भुले। और वो मां की सीस कितनी वड्डी। असीं ब्रह्मा के अवतारां का जिक्र पढ़ते हैं, असली विष्णु महाराज के अवतारां का जिक्र पढ़ते हैं। रब का अवतार देखिया देखो कहने गुरु अर्जन देव जी। ब्रह्मा का अवतार भी है, शिवजी महाराज के अवतार भी हैं, पर गुरु अर्जन देव महाराज ने जिन्हों के बारे पढ़ते गुरु अर्जन प्रतख हर। ये नहीं आख्या कि गुरु अर्जन देव रब वर्गे ने, असी पढ़ते गुरु अर्जन देव रब ने। जपयोजन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। ये गल मेरे अंदर तां आई, जेड़ा उत्थे उच्ची बांह करके तुरिया सी, कहन लगा भैन की सीस लैनी, भैन की सीस। पीर बुद्धू शाह की घरवाली नसीरा के कोल गया, पैरों में हथ लाया, पैर तेज ने काली च ने। भैन ने पूछा भी वीर कितनों चढ़ाइया ने, अंदरों सत निकलिया। कहन लगा भैन तैथों ये गल जरी नहीं जानी, जिन्हों तुसीं पीर करके मनदे हो, जिहदी झोली तू अपने पुत पाए ने, उस पीर का फस्ता वढ़न चलिया। तुहाडे पीर नूं फड़ के दिल्ली सरकार दे पेश करना है। भैन दे पैरों थल्लों मिट्टी निकल गई, जवानी दे वेग विच तुर पिया। मां दा जाया सी, ममता ने मजबूर कर दिता। उधर सैयद खान ने आख्या गुरु गोबिंद सिंह मैं तेनू तां मनदा जे कल्ले अगे कल्ला होवे ते। उधर उन्हें ये मन भी फुरना किया। इधर बीबी नसीरा मुसलमान भरा भैन जो नमाज पढ़ते थले कपड़ा बिछा के पढ़ते हैं, ये उन्होंने नहीं होया। बीबी ने कपड़ा बिछाया, आनंदपुर साहब को मुंह किया, कहन लगी बाजा वालिया बापू पुत तेरे चरणों चो निशावर किए कुछ नहीं सी मंगया, भरा वालिया कुछ नहीं सी मंगया, मेरा हीरे वर्गा दिओर तेरे चरणों के विच अपने आप को समर्पित कर दिया, कुछ नहीं सी मंगया। अज मां के दुध ने मजबूर किया ही, मेरी अम्मा का जाया तेरे ते हमला करने आ रहा है, तेरे तीर मारन वाले भी। मैनू पता है
गुरमुखो ये भी एक गल नोट करने वाली जे तीर पता नहीं कदों तो बने ने, केवल मारली बने ने। ये गुरु गोबिंद सिंह है जिहदे तीरां नूं 1 तोला सोना लगा है। तुसीं कदे अकाल तख्त साहब जाया जे, केसगढ़ साहब जाए, तुहानूं दर्शन करावांगे कलगीधर दे तीरां दे। 1 तोला सोना लगा। पुछया बापू काहदे लई? गुरु कहंदा मैं वैरी नहीं किसी दा, ये मेरे सारे परिवार के मैंबर ने, ये बच्चे ने, पर जे मेरे तीर नाल कोई शरीर छड़ जाए, पता नहीं कफन का प्रबंध होना कि नहीं। मैं चाहना मेरे तीर को सोना ला के उहदे कफन का प्रबंध किया जाए, उहदी कबर का प्रबंध किया जाए। ते जे कोई बच गया, पता नहीं दुआ की गुजाइश है कि नहीं, ये मेरे तीर का सोना ला के उहदा इलाज किया जाए। मैं मारनी नहीं आया, मैं जीवन देने लिए आया हाँ। बीबी नसीरा ने अरदास की, मालका मैनू पता भी तेरे तीर मारन वाले नहीं, पर बेनती करती है तेरी धी जो है, इउं करी अपना लोहे का तीर मारन तो पहला अपनी रहमत का तीर मार दी दे पर। इतिहास के पन्ने बाचीदे ने। कलगीधर बापू एक पासे सईदा कह रहा मैं ता मनांगा कले लगे कला। कलगीधर बापू कहने लगे सिंघू ये साडा निजी मामला, तुसी पिछे रहो। बापू घोड़े तो उतरिया ते कहने लगे सैयद खां आप गुरमुखा जरा लागे आ। कलगीधर बापू तीर नूं हथ पाउंदा ते मुड़ के हथ छड्ड दिंदा है। बाबा दया सिंह ने बेनती की, पातशाह मसला को गुंझल जा जापदा है, नाले तीर नूं फड़दे ते नाले छड्ड दिंदे हो। कहंदे दया सिंह सच जाणिया ही की करां। ये कहंदा मेरे ते नाल 2 हथ कर, जदों मैं तीर नूं हथ लाउणा है ते बीबी नसीरा मेरे घुट के गुट नूं फड़ लेंदी, मेरे मालका कृपा करी मेरे वीर ते तीर ना चलाई। मैं नसीरा नूं किवें मोड़ दियां? इतिहास के पन्ने पढ़ के वेखो। सैयद खां सामने आया, काम करता गुरु के चरणों से डिग पिया। मेरे पातशाह कहने लगे सैयदिया पिछे बड़ा बड़िया करदा मारदा सा, तू कहना सा मैं गुरु गोबिंद सिंह फड़ के लियाउणा है, एडी छेती हाथ जोड़ के आख्या पातशाह मैं की करा, मेरे तीर चलाउण तो पहला तेरी कृपा का तीर मैनूं बच चुका ही, हुण मैं कासे जोगा नहीं रहा। और गुरमुखो उस दिन तो बाद उन्हें अपना सारा जीवन परमात्मा की बंदगी में बतीत करके सफला किया। कलगीधर पातशाह महाराज जी ने 3 शहीदों का जिक्र करता है। एक सैयद खां बीबी नसीरा का भरा, एक सईदा बेग जरनैल सी। गुरु पातशाह चमकौर 2 बार गए ने। जो पहली बार गए ने ना उदों हमला कर लिए आया सी ते मुड़ के गुरु का प्यारा बन के ते उन्हें बंदगी को ना सईदा बेग है। तीजा सईदा बला है जिन्हों सतगुरु पातशाह ने 21 गुना दान किए, तो प्रसंग अलहदा है। गुरमुखो आनंदपुर साहब को घेरा पाया गया। मैं ये गल मजी सब कई बार की है, सवाल पैदा होता है वार वार गुरु घर से हमले क्यों दे रहे? तुसीं 84 लिखिया संत बाबा जरनैल सिंह के बारे सरकार ने बड़े अपशब्द कहे। संत बाबा जरनैल सिंह अमृतसर साहब अकाल तख्त सन, लेकिन मूसा साहब को घेरा क्यों पाया गया? इतने पिया तो बड़े पड़ेगा। तरनताਰਨ ਨੂੰ घेरा क्यों पाया गया? दुख निवारण के गुरुद्वारे ਨੂੰ घेरा क्यों पाया गया? ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ जो मैं समझिया ना, ਇੱਥੇ सच ਦਾ ਦੀਵਾ जगदा है ਤੇ ਚੋਰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ सच ਦਾ ਦੀਵਾ जगदा है, चोर ਤੇ ਦੀਵਾ ਇਕੱਠੇ नहीं रह सकते। इस करके समय ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ हर मौके ਤੇ इस ਦੀਵੇ ਨੂੰ बुझाने का यत्न किया, पर यह लट लट करता है। मैं आरंभ किया कारण सच सी, सच है, सच होगा। असी किसी व्यक्ति के सिख नहीं, असी सच के सिख हाँ।
गुरमुखो सरकार नूं ये फिट नहीं, आनंदपुर साहब नूं घेरा पाया गया, चोरां दे चोर मित्र किते हंडूरिया, किते खडूरिया, किते बिलासपुरिया, पता नहीं किन्ने करड़े, पर गल बड़ी ना। इतिहास के पन्ने कहते हैं 8 महीने कंटीन्यूसली घेरा पिया। जाल खां गुरु पातशाह महाराज सुइया विभाग का मुखिया सी। हार जो सरकार है ना वो अपने खुफिया विभाग के द्वारा चलती है। अगर खुफिया विभाग फेल होगा सरकार गई। आ दरबार लगा गुरु का, मैं धार्मिक व्यक्ति हाँ, आप साहिबजादियों का दिहाड़ा मना रहे हैं, पर इत्थे कोई सरकारी मुलाजम होगा जिन्हें नक्की देना पवेगा कि उस गुरुद्वारे आ गल हुई तो फलाने ने आ गल की, भावें आपां नूं पता तो भावें नहीं पता। ये सरकारों का नियम है। इसे प्रकार गुरु घर बराबर सी। गुरु घर के सूबे का नाम लिखा बाबा जालम सिंह के आनंदपुर साहब के सूबे विभाग का मुखी सी। एक आलम सिंह ये पैसे ते जिम्मेवार सी ते जालम सिंह सूबे विभाग का मुखी सी। जालम सिंह उन्हें कलगीधर बापू नूं आण के बेनती की, पातशाह कल नूं पता लगा भी अपने उपर शराबी हाथी शराब प्या करके ते फलाना जिहड़ा लोहगढ़ किला दरवाजे को तोड़ना, आपां नूं जवाबी प्रबंध करना चाहिए। उन्हें ड्यूटी निभाई। कलगीधर बापू कहने लगे कोई गल नहीं, जालम सिंह करतार भला करे, उन्हें अपना हाथी भेजना ते अपने को भी अपना हाथी है। जदों ये गल कही ना उदों अपना भाईचारा विचारां च पै गया कि कलगीधर बापू ने की आख्या कि अपना भी हाथी है, साडे दा घोड़े भी खत्म हो गए। जिहड़ा नीला घोड़ा ना जिन्होंने आम करके इस थां थां ते जाने तो सानूं गुरमुख प्यारे पुछदे ने कि नहीं जो नीले घोड़े का की बनिया, उसका नाम सी दरबडार। भुख के कारण पट्ठे के दुखों गुरमुखों को आनंदपुर साहब तरफ तरफ के नीला घोड़ा रब नूं प्यारा हो गया। भुख बड़ी चंगी है। असी प्रचलित पढ़ते हैं, मैं बाणी नहीं पढ़िया, पर प्रचलित फरीदा बोतो भुख बुरी रात को सुते खा के दिने फिर खड़ी विचार ने कहने लगे भी कल अपना हाथी मुकाबला करेगा। सिंघां ने हाथ जोड़ के बेनती की, पातशाह हाथी किथे है? हजूर कहते दुनिया चंद मजीठे वाला एक बंदे की हाथी नाल तुलना क्यों की? मैं बचपन में साढ़े इलाके का ट्यूशन था, पंडित मोहन सिंह घड़ियाला, ਉਹਦੇ ਕੋਲ सुनिया कि वो 3 पा लूण चप जाता सी, कड़ाह खा जाता सी, जिन्नी दाल ਉਹਨੂੰ पी जाता सी। बीबियां ने जोतां वास्ते उन्होंने तो कहना भैन जी तुहाडे कोई न्याणा रोंदा ते मैं पा देना ते अंदर होके उन्हें जोत दा घ्यो पी जाना। पालको ने अपने पेट को अगे रखा सी। 7 मन पक्का वजन लिखा उसका इतिहास, 7 मन पक्का वजन। खुराक इन्नी खुराक खाता सी। कहने लगे दुनिया चंद लड़ेगा हाथी नालों घट है। याद रखना आप रुपया वेदे 2000 का नोट, 500 का नोट, पर एक निक्की जी तार होती है, बाहरों भावें मोर पूरी हो, पर जिन्ना चिर तार ना हो वो नोट जाली होता, चलता नहीं। वो डर गया, कारण वो अंदर अजे अमर की ताकत नहीं सी, बेअमर किया सी। नालदियां नूं कहण लगा मित्रो तुसीं मेरे वाल वेख के दंद कढ़दे हसदे हो, अज मेरी वारी ते भड़के तुहाडी भी आउणी जे। कैरां दे कैर यार अपने वर्गे नाल कई लै करके गुरमुखो रात नूं किले दी कंध टप गया। इतिहास के पन्नियां ते लिखिया भी उसकी लत्त टुट गई, हाय हाय कर लगा ते नाल दे कहंदे पहले अंदरों कढ़िया मरवाउणा ही, उन्होंने मजीठे पहुँचाया गया। ते सिंघां ने आख्या बादशाह तुहाडा हाथी हर हो गया जी। हजूर कहते सिंघो हाथी हर नहीं होया,
हाथी की मौत लै गई उन्होंने उत्थे। आप जिन्हें सही बैठे हैं ना, ये कदे विचारिया करो, साढ़े वास्ते करतार ने 3 चीज़ों का अरेंजमेंट किया तो सारे वास्ते भावें आप बुरे तो आप भले हैं। मौत वास्ते 3 पॉइंट ने, थां, समा ते जिहड़ी वस्तु नाल मौत होनी है। जो तिने चीज़ां इकट्ठियां तो सानू दुनिया की किसी ताकत ने बचाना नहीं। उन्होंने कहते देश, काल ते वस्तु, जगह, देश, काल, समा ते जिहदे नाल मौत होनी है। जो तिने चीज़ां इकट्ठियां होईयां, हकीमां दे डॉक्टर भावें गुट फड़ी रखण पर जान निकल जानी है। मेरे पातशाह कहते उसकी मौत लै गई, वो घर सप है, सप लड़ के मरना इतने शहीद किवें हुंदा। दिन चढ़िया, ਸਿੰਘੋ घबराओ ना, हाथी भज गया पर शेर तो नहीं भजेगा, शेर है। सिंह विचारां च पै गए कि कलेब शेर कित्थों आ गया। कहने लगे जी शेर किहड़ा हाथी धारण हो गया। कहते भाई बचित्र सिंह, भाई बचित्र सिंह भाई मनी सिंह का बेटा होया। आप गुरु के साहबजादियां की गल करते हैं। नमस्कार सतगुरु नूं, नमस्कार गुरु के साहबजादियां नूं, नमस्कार गुरु के सिखां नूं भी। ये जंग में गुरमुखों भाई मनी सिंह के 5 पुत शहीद होए ने। अनंत सिंह, अजैब सिंह, बचित्र सिंह, उदय सिंह, ये सारे दे सारे 5 पुत्र भाई मनी सिंह के होए जिहदे बंद कटे गए। बड़ा औखा जी इवें लिखा कुछ सिक्की बरीक है। खंडे तार गड़िया ते ढीड़ी, उथे टिके ना फुलहना, लंघ न सके उपर कीड़ी। तेल तलूने कोलू पीड़ी, सिड़ा अलूनी चटनी, मानक मोती चौगत बीड़ी। ते रोजाना पाड़ करदे खन्नियों तिखी, वालों निक्की, एक मार्ग जाना पर पास कौन होगा। गुरप्रसादी जिनी आप तजिया, गुरु की कृपा के द्वारा जिन्होंने मैं छड़ी वो पास होंगे, बाकी फेल। भाई बचित्र सिंह तेरे ते गुरु नानक दियां मेहरां होईयां, गुरु का सेवा तेथों लेनी है। गुरु के चरणों के सिर रखिया, कहने लगा पातशाह मैं काहदे जोगा है। हाँ तेरा कृपा भरे हाथ हो गए ना, तेरी कृपा करे तो इंद्र का ऐरा पत हाथी में थले धूके ले आवा। पर नाल बेनती करदा पातशाह तेरी रहमत तो बिना कुछ भी नहीं। हजूर ने नागनी बख्शी दी। अज वो तख्त के सुबाहे आप दर्शन करते केसगढ़ साहब। अगे अगे हाथी, पिछे पिछे गुरु का शेर। जेत हुई सरकार पैपीद होगी। आखिरकार धर्मी गुरु के नाल धर्म की नीति का धोखा करके गुरुदेव को छड़ना चाहते हैं। 2 टीमां रल गईयां। एक पहाड़ी राजे जिन्हां दा मुख बिंब है गऊ, दूसरे पासे औरंगजेब एंड पार्टी, उन्हां दा मुख बिंब है कुरान। कहते जी तुसीं सारे उहदे साझे हो। वेखो पोलीटिकल लोग, राजनीतिक लोग, असी मारे पढ़ के आए तुहाडे कोल क्योंकि तुहाडा संदेश है कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे कसैया, कोई अलाहे, कारण कर्म करीम कृपा तारहीम, कोई नहावे तीर्थ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर नवाए। तुसीं सारिਆਂ ਦਾ माण करदे हो। असी गऊ ते कुरान की कसम खा के कहने असीं तुहाडे ते हमला नहीं करांगे। साडी मजबूरी बन गई है। वो कहते भी गुरु तुहाडे नाल सैट नहीं, इस करके साडी बेनती मन के अनंदपुर साहब छड्ड जाओ, जिथे तुहाडी मौज चले जाओ। ते साडे वर्गे कमजोर कहने लगे बादशाह इहदे तो वधिया तां मौका मिलना ही नहीं। हजूर कहते भलिओ तुसीं जानदे नहीं, पर माड़ा जिहा तुहानूं जिहदा रंग दिखा देने। कहने लगे गुरमुख पहला साडा माल जाएगा सवाब, फिर असीं जावांगे। होया कि टुटे छतर, मरे हुए पशुओं का चमड़ा, उन्होंने बोरी में सिओ के कहने लगे साडा माल लंघना जे।
दुष्टां ने हमला किया तो पल्ले जुतियां पईयां, पल्ले फिर भी कख ना पिया। आए सन गुरु नूं शरण पर छड़ के छड़े गए, कहने लगे जी असीं भुल गए। जिवें अज साडे समाजिक लफ्ज सॉरी, बड़ा लोग बोलते हैं सॉरी, प्लीज सॉरी। मैनूं बड़ी नफरत इहदे नाल, बड़ी एलर्जी है। अगले ना कंघा कर देना तो मुड़ के कहना सॉरी मैं भुल गया। ये सॉरी वालियां तो बचो, ये सॉरी वालियां ने चंद चाढ़िया। कहते जी सॉरी असीं भुल गए। मेरे पातशाह कहते सिंघो काढ़े ना पाओ, 8 दिन होर टाइम कढो, करतार भली करेगा। कहते पातशाह तुसीं 8 दिनां की गल कहते हो, हुण तां घड़ी लंघनी औखी है। आखिर की होया, माता जी ने बेनती की सिंघां ने, माता जी ने सतगुरु पातशाह नूं आख्या तो सतगुरु पातशाह कहने लगे माता जी असीं तां तुहाडे बच्चे, तुहाडा सिर मत्थे ते, पर अकाल पुरख नूं भुलवा मंजूर है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं एक गल कहनी भुल ना जावां। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭਾਏਮਾਨ है। माता गुजरी जी गए, सिर नवाया, अरदास की, मेरे सिर दे साइयां तेरी जिंदगी मेरे ते कृपा करी मेरी निभ जाए। ये माता गुजरी की अरदास है। अपने अंदर झाती मारो, अपने अंदर किहो जिहियां अरदासां हैं। ये माता गुजरी वो है जिहदा आनंद कारज गुरु अर्जन सच्चे पातशाह ने अपने हत्थां नाल करवाया। धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह की नूह राणी माता गुजरी अपने पति के सीस अगे जाके धावां नहीं मारियां, पिट्टी दे रोई नहीं, क्योंकि उन्होंने मैसेज मिलिया सी तेरा किया मीठा लागे और नाम पदार्थ नानक मांगे। ये उन्होंने अपने ददियोरे दे कोलों दात मिली सी। आखिर 5 ते 6 पोह की दरमियानी रात में आनंदपुर साहब छड्डिया गया। परिवार ਵੱਖ-ਵੱਖ भागां विच वंडिया गया। साडे च बहुत कमजोरी है, जिहड़े साडे शहरी भरा ने ना उन्होंने कई तर्कां करके तुहाडा की हिस्सा है, ये ना क्या करो। जिन्ने भी गुरु के सिख ने, जिन्ने जिन्ने जोगे सन उन्होंने कुर्बानी की, उन्होंने सारे नमस्कार। रोपड़ का रहने वाला भाई जवाहर सिंह उन्हें माता साहब कौर जी, माता सुंदर कौर की सेवा की जिम्मेवारी भी महाराज मैं इन्हां मातावां की सेवा च रह करके ठिकाने दिल्ली पहुँचाने का यत्न करांगा। और मैं एक ये बड़ी मन नूं कंबण वाली घटना पढ़ी। एक बीबी बसंत लता हुई है, वो गुरु घर में एज ए सेवादार के तौर पर आई, राजपूतां की बेटी सी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ मन में चाह पैदा हो, कहने लगी कि मैं हुण गुरु माता की सेवा छड्ड के जाना ही नहीं। माता का डोला जा रहा है, बीबी बसंत लता भी जा रही है। रात का अंधेरा होने करके बीबी पिछे रह गई। उन्होंने तुरकां ने पकड़ लिया, सरहंद लै गए। उन्होंने वाहिगुरू ने सुंदरता बड़ी बख्शी सी। एक आप चमड़े की सुंदरता मानते ना, चमड़े की गुरबाणी ने चमड़े की सुंदरता नहीं मनिया, कहते सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने। पर उस बीबी नूं वाहिगुरू ने अंदरों ते बाहरों सुंदरता दी सी। जिहड़ा तुरक है ना, वो बार बार वो मन की भावना कि मैं इस बीबी नूं ऐज अपनी औरत के तौर पर नाल रखा। कहने लगी मैं माता की दासी हाँ, मैं इतों बहुत अगे लंघी हाँ। पापिया वेखी मेरे धर्म च अपना धर्म ना वाड़ी। उन्होंने भुखिया रखा गया, परेशान किया गया। आखिर शरीर कमजोर हो गया, तुरक बकार में अंधा होया। बीबी वाले पासे वल वधिया। अज दुख नाल कहना पैंदा साडे कोल मोचना आ गया है, अज साडे कोल लाल ते चिट्टा रंग आ गया है, अज साडे कोल कृपान नहीं रही। बीबी में जुर्त सी,
ਉਹਨੇ क्योंकि जो बीबी ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਲਈ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤੁਰਕ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਖੰਜਰ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਪੀਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨਾ सूबे के पैरों के थले मिट्टी निकल गई कहने लगा इस बीबी का संस्कार किया जाए एक सिख नूं इसकी जोड़ी मिली जो बीबी का इशनान कराने लगे तो वो कपड़े चिट्ठी निकली माता जी तुसीं बड़ी कृपा की है मेरा शरीर तो भावें नहीं लिया पर जी तुहाडे कोल गुरमत की गुरती मैनूं मिली सी मैं पूरी निभा च नहीं मैनूं चलण दी थां दिया जे यही साडा करैक्टर यही साडा अखलाक असीं उस बीबी का जिक्र स्टेज पर बहुत घट करते उन्होंने बसंत लता जो आनंदपुर साहब तो निकले ना परिवार के 3 हिस्से हो गए एक गंगू इनू आम करके लोग रसोईया कहते हैं पर गुरमत की आपां कसौटी से परखी की बात नहीं बनती क्योंकि रहत नामे लिखा जान के रहत न जानिए गुर मंत्र नी चीत तां का भोजन खाए के मिसरे हसू प्रीत जेड़ा रहत मर्यादा च परपग नहीं ओहदे हथों रोटी ना खा इस करके मैं बिल्कुल अपने पिंड सुनिया सी गागे तो आया सी साडे पिंड आन के बेटा 47 च वो मैनूं कहंदा पुत्र मैं कराची कथा सुनी सी नाम धाई कोलों कहते जे गंगू है तो रसोईया नहीं ये रसोईया तो फिर गंगा सिंह होगा ये मैं अपने पिंड की गल इतिहास में पढ़ी कहने लगा कि गुरु बेमती रोटी रोटी किमें खावेगा पर इस गल आप पासे कर दिए गुरु प्रकाश पातशाही विच लिखिया है उद्दम संत विपरीत पाती पापी मां पादकी गंगू पापी ये बसंत सी ये रसोईया नहीं सी माता जी के नाल में एक सेवादार है एक खच्चर माया दी है इन माया की पकड़ है दूसरे पासे कलगीधर पातशाह महाराज के नालों बाबा अजीत सिंह जी अड निखड़ गए कलगीधर पातशाह महाराज अगे चले गए एक पठान निहंग खां जिथे गुरुद्वारा पट्टा साहिब बनया ਉਹਦੇ पट्ठे ते गुरु के घोड़े ने चरण रखे छूं की आवाज हुई ते निहंग खां कहन लगा खुदा भुलावे ना महाराज तू किते गुरु गोबिंद सिंह तो नहीं कलगीधर बापू कहन लगा निहंग खां गल बड़ी कमाल की कीती खुदा भुलाउंदा ही नहीं मैं गुरु गोबिंद सिंह हाँ कहन लगा मालका मेरे ते कृपा कर मैं निभाना है मैनू सेवा बख्श ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀਏ इस गुरसिख की सेवा की जिम्मेवारी तेरी आप धियां वाले गल टिकिया जाए वो आम बंदा नहीं सी जिहदे उस मौके भट्ठे सन अमीर होगा अपनी बेटी मुमताज नूं कहन लगा धीए इहदी सेवा तू करनी है सरकार नूं शक पिया कि इहदे कर गुरु गोबिंद सिंह ने बागी आए ने एक मैं गल वड्डी साहब कहना हुंदा हुण सिख है पर कम दो करदी है जे माड़ा आवे तो उसकी बांह मरोड़ के उन्होंने कहते तेन सीधा कदे थाने था के जे तगड़े के घर आते हैं तो गुना खड़काते सरदार जी अंदर आ जाइए ये नीति बड़ी पुरानी है निहंग खां तगड़ा होकर कहने लगे भाई साहब सानू शक पिया किसी रसोईए ने खबर दी भी तुहाडे घर सिख ने ते की असीं अंदर आ सकते कहने लगे चल जाओ मैं खुद तुर पिया आओ जी आया अंदर गया नीति वरती कहने लगा इस कमरे के विच मेरा धी ते जवाई है आप धियां वाले हैं कि आप किसी आम बंदे नूं जवाई कह देंगे
आवाज मारी, मुमताज मेरा दिमाग सुता के जागदा है। अगों मुमताज ने आख्या अब्बा जां हुणे टिके ने, जे कहो तो जगावा, वो कहंदे धीए पे रहण दे। उस बीबी का सिदक वेखो, बचित्र सिंह शहीद हो गया, ਉਹਦਾ संस्कार उन्हें अपने घर में किया। साडा बापू चढ़ाई कर जाए ना, जिहदी 35 किले पैली वाहनी है, असीं कहने मेरा बापू को रात लम्मे पैण को जी नहीं करता। जेडे प्यो ने 35 किले पैली साडे लिए बनाई ना, कि बापू 4 बजे चढ़ाई कर जाए, उस कमे में कोई सौण नूं तैयार नहीं। बापू को डर होगा बापू के कोलों। पर भाई बचित्र सिंह का संस्कार निहंग खां ने विहड़े विच कीता है। गल इत्थे नहीं मुक्की। मुमताज बीबी विआह दे योग सी। निहंग खां कहण लगा कि बेटी वास्ते भरकर लभ्या जाए। बीबी ने हौसला किया, कहण लगी अब्बा निकाह किन्ने नाल करना ही। बाप एकदम देखदा कहण लगा की आख्या मुमताज? कहंदी अब्बा तू आख्या सी ना कि मेरा दिमाग सुता के जागदा है, मैं आख्या सी मैनूं मंजूर है। मैं बचित्र सिंह को अपना पति करके मनिया, और वो बीबी ने 80 साल तो बाद उम्र भोगी, अपना विआह नहीं कराया। ਉਹਦਾ सिर्फ देखो। कलगीधर बापू चलेगा चमकौर के कोल। चमकौर नगर में गुरदेव के दूजी वेर गए हैं। अज ये मेरे को समा नहीं पे पहला भी गल करा, मैं बेनती की अगे कि इत्थे पहली उदों अल्प खां ते सैदे बेग ने गुरदेव से हमला किया, प्राय तो उधर सैदा भी गुरु के चरणों से डिग पिया, गुरदेव जित के पहला भी जंग होया चमकौर। ये दूजी घटना कच्ची जी गढ़ी सी, 2 भरावां दा घर सी, सिरिया भेजिया, बाग में पातशाह उतरे। जेड़ा माड़ा सी आया कहने लगा कि मैं तो गजमत, मैनू पैसे दो, मैनू हुक्म करो, मैं अपने पास बूहा खोल देंगा, बढ़ जाओ। उन्होंने माया दी। पातशाह गढ़ी में चले गए। इन्हों के जानने वाला दूजा जबरदस्ती को छड़ के भज गया। पातशाह किले दे विच गए, उपर चुबारे दे विच सारे तो पहला आलम सिंह ते संत सिंह गए हैं। मैं जिक्र किया पहला भी आलम सिंह सतगुरु पातशाह महादेव पैसे ढिल का जिम्मेवार सकते सी, आप अजकल अकाउंटेंट कह देने, खजानची कह देने। वो भाई आलम सिंह महाराज जी चमकौर सब गया। भाई आलम सिंह के चमकौर, भाई आलम सिंह के संता सिंह उपर गए। मदन सिंह ते कोठा सिंह नमस्कार इन्होंने मरबी सिंह भरावां नूं अज बड़े दुख नाल कहना पैंदा भी साडे वीर कई होरना पासियां वल वेखदे ने। नमस्कार अपने मरबी सिंह भरावां नूं करां। वो गुरमुखो तुहाडे वडेरे ने, गुरु का शीश लिया सी ते कलगीधर पातशाह ने जप्पी पा के आख्या सी घरेते गुरु के बेटे। अज मदन सिंह ते कोठा सिंह ये जोड़ी बैठे ने, कहने लगे पातशाह जे कोई लंघेगा साडे सिर दे उपर दी लंघेगा, असीं थल्ले ड्यूटी देंगे। नाल पीड़ करां मदन सिंह ते कोठा सिंह। इसे तरह महाराज जी दया सिंह, मान सिंह ते आलम सिंह, जिन्होंने अजकल आप सुपरवाइजर कह देने, इन्हें एज सुपरवाइजर ड्यूटी निभाई, वेख्या। और गुरु पातशाह ने 4 पासियां तो सिंघां नूं तकसीम किया वख-वख भागां च। और गैरत खां, नार खां ते ख्वाजा मरदूद ये बार स्कीमां बनाउंदे हन। जिहड़ा नार खां है, गैरत खां है ते ख्वाजा मरदूद कहने लगा मित्रों मेरी कराया है कि गुरु नूं आप दूध नूं खेड बल लैण दी। जे लग मैं पढ़े इतिहास आनंदपुर साहब तो आप कट लिया, थोड़े जे सिंह ने किन्ना कि देर अणगे। आपां नूं बहुत ही काहली नहीं करनी चाहिए, ये उन्होंने राय दी। पर कई काले होंदे ने। आखिरकार नार खां और इसी तरह गैरत खां ऊपर चढ़े ने। मेरे पातशाह ने तीर मारिया, थले डिग पे। ख्वाजा मरदूद ओले होके भज गया।
जिहदा जिक्र कलगीधर पातशाह ने जफरनामे दे विच भी कीता है। भाई मोहन सिंह जिहड़े पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सन कहण लगे मां जी बेनती करा अजो कहंदे बहू सिया तू तो मेरा प्यारा गल खुल के कर तेरे ते मेरे च भेद कोई नहीं। कहण लगा जी एक गल दा मेरे मन में थोड़ा जिहा पछतावा कहंदे काहदा जे तुसीं आनंदपुर सीस मंगे सन ना दया सिंह पहला आ गया धर्म सिंह पहला आ गया हेमंत सिंह पहला आ गया ते मैं चौथे नंबर ते आया। मैनू बड़ा कुछ दावा है अज मेरे ते कृपा कर मेरी पहला ड्यूटी ला जेड़े नंबर पिछे घड़े ने मेरे पूरे हो जान। और गुरमुखो वो चमकौर की गढ़ी दे विचों बाबा मोहन सिंह दान सिंह खजान सिंह ते ध्यान सिंह इन्हां मित्रां नूं नाल लेके निकलिया। कहण लगा मित्रो जिवें कबड्डी की टीम हुंदी है आपां टीम बन के जाना है। और वो भाई मोहन सिंह दान सिंह ध्यान सिंह रदान सिंह गुरमुखो पहले जदे भी शहीद हो गए। और ਉਹਦੇ ਤੋਂ बाद बाबा हिम्मत सिंह बाबा साहब सिंह ने बेनती की। कहने लगे पातशाह ने गल हो बन गई मैं पहला सा ये नंबर लै गया ते साहब सिंह कहने लगा जी मैं फाड़ी रवांगा मैं पहला भी फाड़ी हुण भी फाड़ी मेरे ते कृपा कर जे कोई कमजोर बच्चा हो तो माँ प्यो दी बाहां फड़ के उन्हें तोड़ते ने मेरे ते कृपा करो। असीं इकट्ठा अमर छकिया ते मेरे मन की भावना है हेमंत सिंह ते साहब सिंह इकट्ठे शहीदी दा जाम पीण। आपां भी दोस्तियां पाईयां ने ना उथे दोस्तियां ने गुरु के चरणों तो अपना आपा निशावर कर दियां। जदों ये पांच प्यारे जो तीन चले गए ते बाबा अजीत सिंह ने हाथ जोड़ के बेनती की बापू इहो जिहा समा उन्हां तेरा अमर छकिया उन्होंने पहला तोरिया साडा तेरे ते डबल दावा सी सानू पिछे ले जाएगा। मैं तेरा नादी पुत्र मैं तेरा बिंदी पुत्र आप गुरु के सिख आप कहते हैं नादी पुत्र आप गुरु को से नादी पुत्र जिहड़ा साडी बल्दी तो कहते हैं बिंदी पुत्र। बाबा अजीत सिंह ने आख्या महाराज मैं तेरा डबल मेरा हक बनता नाले तेरा अमर छकिया मैं पूछे नादी पुत्र नाले तेरा बिंदी पुत्र इन्हां तिन्हां नूं भेज के ते मेरे नंबर ना घटा। मेरे पातशाह कहने लगे गुरमुखा तेरे ते गुरु नानक मेहर करे। नाल सुखा सिंह बदूचिया ये गुरु का नाल चलिया और नाल गुरु के सिंह चले। बाबा अजीत सिंह दी बोटियां बोटियां हो गई। इतिहास कहता है एक अनवर खान नाम का पठान आया बाबा जी के नाल जंग करदे बाबा अजीत सिंह की कृपान टुट गई। अनवर खान ने संयोग ही नहीं सी मुड़ के बरछी नाल वार किया अगला फाड़ा टुट गया और गुरमुख को मुड़ के बाबा अजीत सिंह का उन्हें रेजा रेजा करता जिन्होंने आप कहते टोटा टोटा कर दिता। कलगीधर बापू जकारे छड़दा सिंघा ने आख्या पातशाह काहदी खुशी। कहने लगे मित्रो अज वाहिगुरू ने कृपा की है मेरे पुत्र दियां बोटियां इल्ला आकाश में तोड़ के जाणगियां पंदे झंडे चुनणगे। मेरी वाहिगुरू ने मन की भावना पूरी की है मेरे पुत्र दे मास दियां बोटियां कीड़े थले जाणगे मेरे पंद दियां जड़ां डूंघियां होणगियां। ते बाबा जहार सिंह कहने लगा बापू बस इत्थे गल मुका दी मम्मी तेरा है मेरे ते कर कृपा। मुड़ के बाबा जुझार सिंह की वारी आई वो भी रेजे रेजे हो गए। ਉਹਦੇ तो बाद बाबा अमोद सिंह बाबा बोर सिंह बाबा कीर्तन सिंह ये 8 का जथा निकलिया और गुरमुख की रेजा रेजा हो गई शहीद हो गए। सिखा की गिनती घट गई। अपरंत सिंघा ने विचारिया कलगीधर पातशाह आन के हाथ जोड़ के बेनती की जिन्होंने बाबा दया सिंह बाबा मान सिंह बाबा संत सिंह ये अरोड़ा सिंह सी पट्टी का साड़ी पट्टी है ना उतों का सी एक बाबा संगत सिंह इन्होंने आख्या पातशाह बेनती है असी तेरे सिख हाँ असी हमें नाल कहन लगे साडा दिल ना तोड़ी
मेरे पातशाह कहते सिंघो कहो, कहते पातशाह साडी बेनती मन, चमकौर की गढ़ी छट के चला जा। सतगुरु पातशाह कहने लगे दया सिंह लोगों ने कहना गुरु भज गया बगाने पुत मरा के। कहने लगे कि पहला क्या हमा हमा अपने अपना की बात है, असी हमें नाल क्या है। बेनती करते हैं बाजा वाले बापू तू साडे वर्गे लखां दे करोड़ों बना सकता है, असी लखां भी लगिए साथों गुरु गोबिंद सिंह नहीं पढ़ना। असी लखां उठिए ना साथों गुरु गोबिंद सिंह नहीं पढ़ना, तू साडे वर्गे लखां बना सकता है, साडी बेनती मन। कहते सिंघो मन ली पर मैं लोके नहीं जाना। ये पातशाह तुहाडी मौज। और उस मौके गुरमुखों पंजां नूं बिठा के थोड़ा जिहा इतिहास गरेमा है। कई थावां ते लिखिया कि बाबे संत सिंह के सीस ते कलगी लाई गई, कई थावां ते लिखिया कि बाबे संगत सिंह ते लाई गई, पर भाई वीर सिंह ने बड़ी सियाणी गल कही है। कहते गुरमुखों भावें संत सिंह दी भावें संगत सिंह सी, कलगी एक सी, पर पंजां नूं इकट्ठियां करके गुरु ने आख्या कि गुरु पंथ गुरु पंथ गुरु पंथ ते पंथ नूं गद्दी दे के बाजां वाला बापू किले चों निकलिया ते नाल जुत्ती ला दी। सिंघां ने आख्या पातशाह जोड़ा ला दिता ने, ठंड पई है। कहंदे सिंघो मेरे शीर सिंह पे होणगे, उन्होंने दाड़ियां नूं मेरी जुत्ती न लगे, मैं केसां दा अदब करदा हां, उन्हां दे ककारां नूं मेरी जुत्ती ना लगे, मैनूं ठंड दी परवाह नहीं, मैनूं शालियां दी परवाह नहीं, पर मैनूं अपनियां दी परवाह है। बाजां वाला नंगे चरनी निकलिया है, बाबा दया सिंह, बाबा मान सिंह, बाबा दया धर्म सिंह, ये तिन्नां दे नाल कीती कि आपां तारे दी सेध ते जाना फलाने थां उत्थे इकट्ठे होवांगे। बाबा दया सिंह ने कमर कसे वाला कपड़ा ला के बाबा जुझार सिंह दे तन नूं ढकण लगा। बाजां वाले आख्या दया सिंह ये कम ना करी, लोगों ने कहना गुरु गोबिंद सिंह ने पुत्रां दे कफन पा लै, गैर तां गैर रहे, ढकी दा कमजोरी एक कमजोरी नहीं, ये चानण देण दे, मिट्टी नाल मोह ना कर अपनी मंजिल दूर है। पुत्रां दे लोथां दे कोल दी कहना मिट्टी नाल मोह ना कर, ये गुरु गोबिंद सिंह है, असीं भी अपने घरां चों आए, साडा पुत्र 2 घंटे घर ना आवे ते साडे कालजे नूं चीसां पैंदियां। बाजां वाला बापू माछीवाड़े दे जंगल च गया, शाम दा टाइम अरदास कीती वैगुरू मैं 5 प्यारां नाल वादा कीता सी, मैं इस अमर दे बदले पवार देंगा, पर 4 दिन होर दे दे। मां ते छोटे बेटे 13 प्यो नूं तेरी झोली विच होणगे, मैं महीने नहीं मंगदा, मैं साल नहीं मंगदा, अज 9 पो है। पहले मैं बापू की सील दे के ये सौदा आरंभ किया, एक कही दूजी तारी है रही कही मैं 13 पोह दे के सुरखरू हो जावांगा। उधर माता जी गंगू दे नाल गए, गंगू का मन फिरिया, उन्हें माया लगा ली। जानी खां ते मानी खां जिहड़े मरडे के थानेदार सन, वो सब जादे माता जी को गड्ढे च बिठा करके सरहद लगाए, और उन्होंने अपने वालों जी डिप्लोमेसी सी वरती। इतिहास लिखा साहबजादियां मोड़ जवाब दिता, सानू नहीं इस्लाम फरमान सूबे, राज भाग के मोहनिया बेगमां दा, किसी रोजना रूह निशान सूबे, कर ला जुल्म जो जो ने बस तेरे, पर ना खालसा तेरे ईमान सूबे। आखिरकार की होया, नीयां विचड़े गए, नीयां डिग पईयां, कई खानदान नेकी नूं जमे ते कई बुराई नूं। जेड़े नूर उद्दीन ने गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने शहीद किया सी, ओदे पोतरे जलालुद्दीन ने गुरु अर्जन देव दे पोतरे गुरु तेग बहादुर पातशाह ने शहीद किया। आज जलालुद्दीन जलाल दे पोतरे शासक बेग ते बादशाह बेग ने जदों कंधां टेकियां, साहिबजादियां दी धौन ते छुरी ला के उन्होंने जिवा किया। ये तुसीं प्राचीन पंथ प्रकार पढ़ सकते हो, कंधां विचड़े गए, मुड़ के कंधां डिगियां ते जिवा किया गया। माता जी सचखंड प्याना कर गए, सदके जावां टोडर मला, असीं दा 100 रुपया गुरु नूं मत्था टेक के बड़ियां गल्लां करदे वे, मैं गुरपुरब ते 500 भेंट कीता। टोडर मल ने सोने दीयां मोहरां खड़ियां करके ठा लिया, आपां पुत्रां वाले आ, आपां भरावां वाले आ,
पुत चढ़ाई कर ले ते बापू प्रदेश में कहता भी जिन्ना चिर मैं ना आवां संस्कार ना करिया होवे। बाजा वाले ने अपने बापू का संस्कार नहीं किया, धड़ लक्की शाह बंजारे ने संस्कार किया। अज ओहो जिहा समा बनया। टोडर मल ते टोडर मल दी भरा ने साहिबजादियां दा इशनान कराया। टोडर मल दी धर्म पत्नी ने टोडर मल दी भरजाई ने माता का इशनान कराया। हुण तरीक 3 सरी फट्टे ते किवें पैण। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਲੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ 2 ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਤ ਪੜੋ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ जे मैनू पूछे भी तेरे केस किन्ने वकील ने, तेरे दो लोग तेरे एक केस के बराबर हैं। गुरमुखो पीर बुद्धू शाह गुरु नानक मस्तक होया, जवानी जवानी है। पीर बुद्धू शाह का साला बीबी नसीरा का भरा। पीर बुद्धू शाह धर्म पत्नी का नाम सी बीबी नसीरा। वो सरकार नूं कहण लगा कि तुसीं मैनूं आग्या दिओ, मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं जिउंदे या मार के तुहाडे पेश करांगा। जवानी विच बंदे दी होश कम नहीं करती। मैं पढ़िया थां ते जवानी ये पागल, जवानी ये झल्ली, जवानी को कादी जो बैठे ते चली, हवावां चुडे अंबरां नूं छेड़े, सदा इन कलाबां च रहिंदी सुखली। जवानी ये पागल, जवानी ये झल्ली। जदों वो दिल्ली तो तुरिया ना ते साडे समाज कदे रवायत हुंदी सी, अज वो खत्म हो गई। मैं अपने बचपन तो रवायत देखी, साडे वेंदियां वेंदियां बड़ा कुछ चेंज होया। असीं बजुर्गां दे पैरीं हत्थ लाउणा, बजुर्गां ने सानूं सीख देनी। मैं पोथियां च नहीं पढ़िया, मैं अपने घरों एक गल लभी। असीं जदों भी कपड़ा पाउणा ना गल च कमीज पजामा जो भी होवे ते असीं अपनी दादी दे पैरां नूं ला के ते पाउंदे सन। पहला असीं अपने बजुर्गां तो देखिया, फिर चाचा जी पिता जी ने जदों कपड़ा पाउणा ते मेरी दादी दे पैरां नूं लाउणा। असीं मुड़ के उसे तरह करन लग पए ते दादी ने सी देनी, ये मेरा पुत कपड़ा पाड़े ते नवा सवावे। मेरी शुरू तो प्रवृत्ति हो जी, मैं क्या भी मां चंगी सी ते नहीं है, पुत कपड़ा पाड़े ते सवावे सवावे। कहने लगी बच्चा तू अजे छोटा है। जदों मैं सियाणा होया ते मैनूं कहने लगी पुत्र कदे मरिया दा कपड़ा पाटा। ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੀਸ है कि मेरा पुत जीवन भोगेगा, कपड़ा पाड़ेगा ते नवा सवावेगा। जिहड़ा मर गया कदे मैं ठंडा हो गया। भाव बजुर्गां माइयां ने आउणा, सगियां सोदरियां बीबियां ने उन्हां दे पैरीं हत्थ लाउणा, उन्हां सी देनी धीए तेरे भजड़े जिउण, तेरे सिर दा साईं जीवे, तेरे पेके खुशी वसन, तू दुधी खेले। पता नहीं ये कितनियां सीसां होंदियां सन। सिर दा साईं जीवे, पति भजड़े पेकियां दी सुख, दुधी खेले भाव तेरे का रोटी पानी सौखा होवे। इन्हां क्या जी विज्ञानी जी कथा भुल के मैं गुरमत की गल कह रहा हां। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बाणी च गुरु पंचम पातशाह कहंदे ने मेरी मां की सीस मैनूं इत्थे लै आई। आसा राग पढ़ो, आसा भाला पंजवा। गुरु पंचम पातशाह कहते मेरी मां भानी जी कहती सी पूता माता की असीस निमक न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश मेरे हीरिया तैनू रब ना भुले। और वो मां की सीस कितनी वड्डी। असीं ब्रह्मा के अवतारां दा जिक्र पढ़ते हैं, असली विष्णु महाराज के अवतारां दा जिक्र पढ़ते हैं। रब का अवतार देखिया वो कहने गुरु अर्जन देव जी। ब्रह्मा का अवतार भी है, शिवजी महाराज के अवतार भी हैं, पर गुरु अर्जन देव महाराज ने जिन्हों के बारे पढ़ते गुरु अर्जन प्रतख हर। ये नहीं आख्या कि गुरु अर्जन देव रब वर्गे ने,
ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਬ ਪੂਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀਸ ਲੈਣਗੇ, ਭੈਣ ਦੀ ਸੀਸ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਸੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਪੈਰ ਤੇਜ ਨੇ, ਕਾਹਲੀ ਚ ਨੇ। ਭੈਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਕਿਧਰੋਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ? ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣ ਤੈਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਪੀਰ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਪੂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਭਰਾ ਵਾਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਓਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੇ ਤੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ। 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਪੂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਫਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਫਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਜੋ ਹੈ ਇਉਂ ਕਰੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਬਾਚੀਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕੱਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ। ਬਾਪੂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਸਲਾ ਕੋ ਹੁੰਝੜ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਤੀਰ ਨਾ ਚਲਾਈ। ਮੈਂ ਨਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਦਿਆਂ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਦਿਆ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ
हाथ जोड़ के आख्या पातशाह मैं की करा, मेरे तीर चलाउण तो पहला तेरी कृपा का तीर मैनूं वज चुका ही, हुण मैं कासे जोगा नहीं रहा। और गुरमुखो उस दिन तो बाद उन्हें अपना सारा जीवन परमात्मा की बंदगी में बतीत करके सफला किया। कलगीधर पातशाह महाराज जी ने 3 शहीदों का जिक्र मिलता है। एक सैयद खां बीबी नसीरा का भरा, एक सईदा बेग जरनैल सी, गुरु पातशाह चमकौर 2 बार गए ने। जो पहली बार गए ने ना उदों हमला कर लिए आया सी ते मुड़ के गुरु का प्यारा बन के ते उन्हें बंदगी तो ना सईदा बेग है। तीजा सईदा बला है जिन्हों सतगुरु पातशाह ने 21 गुणा दान किए, तो प्रसंग अलहदा है। गुरमुखो आनंदपुर साहब को घेरा पाया गया। मैं ये गल मंजी साहब कई बार की है, सवाल पैदा होता है वार वार गुरु घर से हमले क्यों दे रहे। तुसीं 84 लिखिया संत बाबा जरनैल सिंह के बारे सरकार ने बड़े अपशब्द कहे। संत बाबा जरनैल सिंह अमृतसर साहब अकाल तक सन, लेकिन मूसा साहब को घेरा क्यों पाया गया। इतने पिया तो बड़े पड़ेगा। तरनताਰਨ को घेरा क्यों पाया गया। दुख निवारण के गुरुद्वारे को घेरा क्यों पाया गया। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਜੋ मैं समझिया ना, ਇੱਥੇ सच ਦਾ ਦੀਵਾ जगदा है ਤੇ ਚੋਰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ सच ਦਾ ਦੀਵਾ जगदा है, चोर ਤੇ ਦੀਵਾ ਇਕੱਠੇ नहीं रह सकते। इस करके समय ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ हर मौके ਤੇ इस ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, पर ਇਹ लट करदा है। मैं आरंभ किया सी कारण सच सी, सच है, सच होगा। असी किसी व्यक्ति के सिख नहीं, असी सच के सिख हाँ। गुरमुखो सरकार को यह फिट नहीं। आनंदपुर साहब को घेरा पाया गया। चोरों के चोर मित्र किते हंडूरिया, किते खडूरिया, किते बिलासपुरिया, पता नहीं किन्ने करड़े, पर गल बड़ी ना। इतिहास के पन्ने कहते हैं 8 महीने कंटीन्यूसली घेरा पिया। जाल खां गुरु पातशाह महाराज सुइया विभाग का मुखिया सी। हार जो सरकार है ना वो अपने खुफिया विभाग के द्वारा चलती है। अगर खुफिया विभाग फेल होगा सरकार गई। आ दरबार लगा गुरु का, मैं धार्मिक व्यक्ति हाँ, आप साहिबजादियों का दिहाड़ा मना रहे हैं, पर इतने कोई सरकारी मुलाजम होगा जिन्हें नक्की देना पवेगा कि उस गुरुद्वारे आ गल हुई तो फलाने ने आ गल की, भावें आपको पता तो भावें नहीं पता। ये सरकारों का नियम है। इसे प्रकार गुरु घर बराबर से गुरु घर के सूबे का नाम लिखा बाबा जालम सिंह के आनंदपुर साहब के सूबे विभाग का मुखी सी। एक आलम सिंह ये पैसे ते जिम्मेवार सी ते जालम सिंह सूबे विभाग का मुखी सी। जालम सिंह उन्हें कलगीधर बापू को आन के बेनती की, पातशाह कल पता लगा भी अपने उपर शराबी हाथी शराब प्या करके ते फलाना जो लोह करता किला दरवाजे को तोड़ना, आपको जवाबी प्रबंध करना चाहिए। उन्हें ड्यूटी निभाई। कलगीधर बापू कहने लगे कोई गल नहीं, जालम सिंह करतार भला करे, उन्हें अपना हाथी भेजना ते अपने को भी अपना हाथी है। जदों ये गल कही ना उदों अपना भाईचारा विचारों च पै गया कि कलगीधर बापू ने की आख्या कि अपना भी हाथी है, साडे दा घोड़े भी खत्म हो गए। जिहड़ा नीला घोड़ा ना जिन्होंने आम करके थां से जाने तो सानू गुरमुख प्यारे पुछदे ने कि ज्ञानी जो नीले घोड़े का की बनया, उसका नाम सी दरबडार। भुख के कारण पट्ठे के दुखों गुरमुखों को आनंदपुर साहब तरफ तरफ के नीला घोड़ा रब नूं प्यारा हो गया। भुख बड़ी चंगी है।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, मैं बाणी नहीं पढ़िया पर प्रचलित रीता बोतो भुख बुरी रात ਨੂੰ सुते खा के दिने फिर खड़ी विचार ने कहने लगे भी कल अपना हाथी मुकाबला करेगा। ਸਿੰਘਾਂ ने हाथ जोड़ के बेनती की पातशाह हाथी किथे है? हजूर कहते दुनी चंद मजीठे वाला एक बंदे की हाथी नाल तुलना क्यों की? मैं बचपन में साढ़े इलाके का ट्यूशन था पंडित मोहन सिंह घड़ियाला ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ कि वो 3 पा लूण चप जाता सी, कड़ाह खा जाता सी, जिन्नी दाल ਉਹਨੂੰ पी जाता सी। बीबियां ने जोतां वास्ते ਉਹਨਾਂ ने कहना भैन जी ਤੁਹਾਡੇ कोई नियाणा रौंदा ते मैं पा देना ते अंदर हो के ਉਹਨੇ जोत तक घ्यो पी जाना। पालको ने अपने पेट ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 7 मण पक्का वजन लिखा ਉਹਦਾ इतिहास, 7 मण पक्का वजन। खुराक इन्नी खुराक खांदा सी। कहने लगे दुनी चंद लड़ेगा हाथी नालों घट है। याद रखना आप रुपया वेदे 2000 का नोट, 500 का नोट, पर एक निक्की जी तार होती है, बाहरों भावें मोर पूरी हो पर जिन्ना चिर तार ना हो वो नोट जाली होता, चलता नहीं। वो डर गया, कारण वो अंदर अजे अमर की ताकत नहीं सी, बेअमर किया सी। नालदियां नूं कहण लगा मित्रो तुसीं मेरे वाल वेख के दंद कढ़दे हसदे हो, अज मेरी वारी ते भड़के तुहाडी भी आउणी जे। कैरां दे कैर यार अपने वर्गे नाल कई लै करके गुरमुखो रात नूं किले दी कंध टप गया। इतिहास के पन्नियां ते लिखिया भी उसदी लत्त टुट गई, हाय हाय करन लगा ते नाल दे कहंदे पहिलां अंदरों कढिया मरवाउणा ही। ਉਹਨੂੰ ਮਜੀਠੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਥੀ ਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਹਾਥੀ ਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਲੇ ਆ। ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, थां समा ते जिहड़ी वस्तु नाल मौत होनी है। जो तिने दी तिने चीज़ां इकट्ठियां ते सानू दुनिया की किसी ताकत ने बचाउणा नहीं। उहनूं कहंदे देश काल ते वस्तु, जगह देश काल समा ते जिहदे नाल मौत होनी है। जो तिने दी तिने चीज़ां इकट्ठियां होईयां हकीमां दे डॉक्टर भावें गुट फड़ी रखण पर जान निकल जानी है। मेरे पातशाह कहते उसकी मौत लै गई, वो कल सप है, सप लड़ के मरना इतने शहीद किवें हुंदा। दिन चढ़िया ਸਿੰਘੋ घबराओ ना, हाथी भज गया पर शेर तो नहीं भजेगा, शेर है। सिंह विचारां च पै गए भी कलेब शेर कित्थों आ गया। कहने लगे जी शेर किहड़ा हाथी धारण हो गया? कहंदे भाई बचित्र सिंह। भाई बचित्र सिंह भाई मनी सिंह का बेटा होया। आप गुरु के साहबजादियां की गल करते हैं, नमस्कार सतगुरु नूं, नमस्कार गुरु के साहबजादियां नूं, नमस्कार गुरु के सिखां नूं भी। ये जंग विच गुरमुखो भाई मनी सिंह के 5 पुत शहीद होए ने। अनंत सिंह, अजैब सिंह, बचित्र सिंह, उदय सिंह, ये सारे दे सारे 5 पुत्र भाई मनी सिंह दे होए ने जिहदे बंद बंद कटे गए। बड़ा औखा जी इवें लिखिया कोई सिक्की बरीक है, खंडे तार गड़िया ते ढीड़ी, ओथे टिके ना बुढ़ाना लंघ न सके उपर कीड़ी, तेल तलूने कोलू पीड़ी, सिड़ा अलूनी चटनी मानक मोती चौगत बीड़ी। ते रोजाना पाठ करदे खन्निओ तिखी वालों निक्की एक मार्ग जाना, पर पास कौन होगा? गुरु प्रसादी जिन्नी आप तरिया, गुरु की कृपा के द्वारा जिन्होंने मैं छड़ी वो पास होंगे, बाकी फेल। भाई बचित्र सिंह तेरे ते गुरु नानक दियां मेहरां होईयां, गुरु का सेवा तेथों लेनी है। गुरु के चरणों के सिर रखिया, कहने लगा पातशाह मैं काहदे जोगा है? हाँ
तेरा कृपा भरे हाथ होवे ना ते जे कृपा करे ते इंद्र दा ऐरा पत हाथी मैं थले धूके ले आवां। पर नाल बेनती करदा पातशाह तेरी रहमत तो बिना कुछ भी नहीं। हजूर ने नागनी बख्शी दी। अज वो तख्त के सुबाए आप दर्शन करते हैं केसगढ़ साहब। अगे अगे हाथी, पिछे पिछे गुरु का शेर, जेत हुई सरकार पैपील होगी। आखिरकार धर्मी गुरु के नाल धर्म की नीति का धोखा करके गुरुदेव को छड़ना चाहते हैं। दो टीमां रल गईयां, एक पहाड़ी राजे जिन्हां दा मुख बिंब है ढोऊ, दूसरे पासे औरंगजेब एंड पार्टी उन्हां दा मुख बिंब है कुरान। कहंदे भी तुसीं सारे दे साझे हो। वेखो पोलीटिकल लोग, राजनीतिक लोग, असीं मारे पढ़ के आए तुहाडे कोल क्योंकि तुहाडा संदेश है कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे कसैया, कोई अलाहे, काम कर्म करीम कृपा तारहीम, कोई नहावे तीर्थ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर नवाए। तुसीं सारिਆਂ ਦਾ माण करदे हो। असीं गऊ ते कुरान की कसम खा के कहने असीं तुहाडे ते हमला नहीं करांगे। साडी मजबूरी बन गई है। वो कहंदे भी गुरु तुहाडे नाल सैट नहीं, इस करके साडी बेनती मन के अनंदपुर साहब छड्ड जाओ, जिथे तुहाडी मौज है चले जाओ। ते साडे वर्गे कमजोर कहण लगे बादशाह इहदे तो वधिया तां मौका मिलना ही नहीं। हजूर कहंदे भलिओ तुसीं जाणदे नहीं, पर माड़ा जिहा तुहानूं जिहदा रंग विखा देने। कहण लगे गुरमुख पहिलां साडा माल जाएगा सवाब, फिर असीं जावांगे। होया कि टुੱਟੇ छतर, मरे हुए पशुओं का चमड़ा, उन्होंने बोरी में सिओ के कहने लगे साडा माल लंघना जे। दुष्टां ने हमला किया ते पल्ले जुतियां पईयां, पल्ले फिर भी कख ना पिया। आए सन गुरु नूं शरण पर छड़ गए छड़े गए। कहने लगे जी असीं भुल गए, जिवें अज साडे समाजिक लफ्ज सॉरी, बड़ा लोग बोलते हैं सॉरी, प्लीज सॉरी। मैनूं बड़ी नफरत इहदे नाल, बड़ी एलर्जी है। अगले ना कंगा करने तो मुड़ के कहना सॉरी मैं भुल गया। ये सॉरी वाले तो बचो, ये सॉरी वाले ने चंद चाढ़िया। कहते जी सॉरी असीं भुल गए। मेरे पातशाह कहते सिंघो काढ़े ना पाओ, 8 दिन होर टाइम कढो, करतार भली करेगा। कहते पातशाह तुसीं 8 दिनों की गल कहते हो, हुण तां घड़ी लंघनी औखी है। आखिर की होया, माता जी नूं बेनती कीती सिंघां ने। माता जी ने सतगुरु पातशाह को आख्या, तो सतगुरु पातशाह कहने लगे माता जी असीं तां तुहाडे बच्चे तुहाडा सिर मत्थे ते, पर अकाल पुरख नूं भुलवा मंजूर है। इहदे नाल मैं एक गल कहनी भुल ना जावां। जदों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह दा सीस लैके आया ना बाबा जीता जी, शहीदगंज गुरुद्वारा केसगढ़ साहब दे सुभाएमान है। माता गुजरी जी गए, सिर नवाया, अरदास की, मेरे सिर दे साइयां तेरी जिंदगी मेरे ते कृपा करी मेरी निभ जाए। ये माता गुजरी की अरदास है। अपने अंदर झाती मारो, अपने अंदर किहो जिहियां अरदासां हैं। ये माता गुजरी वो है जिहदा आनंद कारज गुरु अर्जन सच्चे पातशाह ने अपने हत्थां नाल करवाया। धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह की नूह राणी माता गुजरी अपने पति के सीस अगे जाके धावां नहीं मारियां, पिट्टी दे रोई नहीं, क्योंकि उन्होंने मैसेज मिलिया सी तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ये उन्होंने अपने ददियोरे दे कोलों दात मिली सी। किहो जिहा इतिहास है कि एक चिखा दे विच कलगीधर दी बेबे ते कलगीधर दे साहबजादियां दा संस्कार किया गया। ते आपां अपने घरां विच बैठे हुए उस कलगीधर नूं चेते न करिए ते आपां किरत करनी, उस इतिहास को अपने जीवन में प्रेरणा दिए। उस गुरु ने साढ़े तो पुत्र कुर्बान किए, माता कुर्बान की, पर आप उस गुरु के सिख होके
डेरे जो नाम लैन जाने सानू नक डोब के बन जाना चाहिए। जे साडा गुरु ते विश्वास होवे ना, असीं डेरे नाम लैना चाहिए, बंदियां दे मंगते ना बणीए। सानू कलगीधर बापू ने एक मैसेज दिता, सिखो जागत जोत जब निस मासर एक बिना मन नायक नाने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोर बड़ी मट भूल न माने। वड्डे की वड्याइयां किश कहना कह न जाए। मैं अपने वालों बड़ा कुछ कहने का यतन किया, पर पूरे की गल अधूरियां तो कही नहीं जाती। गुरु बाबा मेरे ते भी कृपा करे, तुहाडे ते भी कृपा करे, सानू अपनी रहमत नाल नवाजे ते साडा नेचा सतगुरु पातशाह के चरणों की प्रकाश होवे। ये मेरी गुरु पातशाह के चरणों च अरदास बेनती है। तुहाडा प्यार भी बहुत बहुत धन्यवाद। भुलां चुकां दी माफी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे को सिंह साहब का धन्यवाद करने लिए कोई शब्द नहीं, मेरा गला खुला फल चुकिया, क्योंकि जिस असी गुरु का समागम बना रहे हैं, जिस साहिबजादे का समागम बना रहे हैं, उन्होंने दुनिया से ना कोई सानी होया ना कोई होएगा। उन्होंने कुर्बानी कौम लई, देश लई, वर्ल्ड लई बहुत वड्डी है।